Then I will tell you what we are going to do in the next class, and then we will be taking the quiz. Okay. Now, let us quickly recall what we saw in the previous lecture. Previous lecture, we have seen problems based on multiplication by T property. Okay. So now let us see what this property was. This property is used to find Laplace transform when a function that is f of t is multiplied with t, that is only t raised to 1. The property can be used only when the function is multiplied by t. Okay. So how do we use this property? So when we see this t multiplied with some function, we know it is multiplication by t property. तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये t को गायब कर देंगे. तो अगर ये t गायब हो गया, जो बचता है उसका पहले आपको Laplace transform find out करना है. That is, you need to find out the Laplace transform of f of t first, right? And then what we do is, suppose this answer comes out to be phi of s, इसका Laplace transform is phi of s, then we multiply this f of t by t. तो राइट हैंड साइड में क्या चेंज होगा, इट विल बी माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ phi of s. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी वी हैव सीन. तो ये है स्टेटमेंट इफ वी मल्टीप्लाई बाय t once. If we multiply by t twice, that is, if we want to find Laplace transform of t square into f of t, then what would be the statement? It would be minus 1 square and second derivative of phi of s. If we want to find Laplace transform of t cube into f of t, it will be minus 1 cube into third derivative of phi of s. Okay, and so on, we can generalize. So the general statement would be Laplace transform of t raised to n into f of t would be equal to minus 1 raised to n into nth derivative with respect to s of phi of s. So this is the statement. This is multiplication by t property we have seen. Okay. Next, what we have seen, this we saw towards the end of the lecture. Okay, कि अगर एक प्रॉब्लम है जहाँ पे हमारे पास दो चॉइस है, उस प्रॉब्लम को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है या मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी. ओके, दोनों नहीं साथ में यूज कर सकते. वी कैन चूज ओनली एनी वन प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉब्लम वी सॉ was Laplace transform of t raised to 5 into e raised to 2t. So t raised to 5 है, मतलब we can use multiplication by t property 5 times. e raised to 2t है, मतलब we can use first shifting property here. So either we can use multiplication by t property 5 times or we can use first shifting property. So now we have to decide which one to use. Okay, so here either one you use, आप फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करो या मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करो, फाइनल आंसर सेम आएगा. ओके, देयर विल बी नो चेंज इन दिस. फर्क किस में रहेगा, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन. ओके, एंड द प्रोसीजर. तो हियर माय सजेशन इज चूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. व्हाई? बिकॉज अगर आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया तो आपको सिर्फ s के जगह पे s प्लस a या s माइनस a, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज, वो रिप्लेस करना पड़ेगा. Okay, so if you're using first shifting property, that means you will be finding Laplace transform of t raised to 5 using the formula, और फिर आपको सिर्फ रिप्लेस करना है, which is very easy. अगर आप मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करते हो तो आपको Laplace transform of e raised to 2t फाइंड आउट करना है, एंड देन आपको डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 एंड डिफरेंशिएट वंस फॉर ईच t मल्टीप्लाइड. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो रिप्लेस करना हमेशा बहुत ईजी है डिफरेंशिएट करने से. ओके, सो दिस इज द सजेशन. और जब ऐसे दो फंक्शन है, यू हैव अ चॉइस बिटवीन दीज टू प्रॉपर्टीज, यू हैव टू यूज एनी वन only, then you choose to use first shifting property. Okay, I hope this is clear. This is a quick recall of what we did in the previous class. Now carrying on from here, I have taken a similar problem. अभी जो हमने डिस्कस किया उसका बहुत ही सिमिलर प्रॉब्लम लिया है. लेट्स सी यहाँ पर फर्क क्या है. सी, वी हैव टू फाइंड Laplace transform of t into e raised to 2t sin 2t. ओके, अब यहाँ पर
ऑल दीज थ्री फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड। ये t मल्टीप्लाइड है मतलब वी कैन यूज मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी। ये e रेज टू 2t भी मल्टीप्लाइड है मतलब वी कैन यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और इन दोनों के अलावा यहाँ पर कुछ बच जाता है, sin 2t इज रिमेनिंग। द प्रीवियस प्रॉब्लम विच वी डिस्कस्ड उसमें t रेज टू 5 और e रेज टू दैट सम फंक्शन वाज देयर, उसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं था। ओके, सो हियर you have t, you have e raised to 2t and some other function is also multiplied. Okay, so in this problem you have to use multiplication by t property and both you have to use first shifting property as well, दोनों यूज करना पड़ेगा। प्रीवियस प्रॉब्लम में दोनों में से कोई एक यूज करना था, इस प्रॉब्लम में दोनों यूज करना है। सो लेट अस सी हाउ वी विल गो अहेड विद दिस सॉल्विंग। तो एज ऑब्वियस सबसे पहले क्या करेंगे, ये t को देखा मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी है तो उसको गायब करेंगे। e रेज टू 2t है मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, गायब करेंगे। जो जो प्रॉपर्टी वाला टर्म्स है उसको पहले गायब कर दिया, तो जो बचता है उसका पहला लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। कौन बचा यहाँ पे, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो ये हमने ये बेसिक फंक्शन का लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर दिया। अब आगे प्रोसीड करने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस है। ईदर वी कैन यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड देन वी कैन यूज मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, मतलब इसको पहले e रेज टू 2t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है मिलेगा, फिर t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। या दूसरा चॉइस है पहले t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर e रेज टू 2t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज विच वन टू यूज फर्स्ट। पहले हम e रेज टू 2t के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करें, या फिर पहले t के साथ मल्टीप्लाई करें। सो दिस इज द क्वेश्चन वी आर हैविंग। ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाइंग बाय t प्रॉपर्टी फर्स्ट। ओके ग्रेट, you have understood the essence, but let me also little bit explain इसको। अगर हमने पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लेट अस अंडरस्टैंड द व्हाई ऑफ इट। आई मीन यू हैव गिवन मी द आंसर, आपको समझ में आ गया है, बट लेट्स स्टिल डिस्कस इज क्यों, व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट। ओके, अगर हमने पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया, मतलब हम लोग पहले फाइंड आउट कर रहे हैं लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t इंटू साइन 2t। ओके, तो यहाँ पर e रेज टू 2t से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ s को रिप्लेस करना पड़ेगा s माइनस टू द होल स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 विच गिव्स अस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 8। ओके, अब अगर आप यहाँ पर t मल्टीप्लाई करना है तो आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर आप पहले t से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट करने में प्रेफरेबल रहेगा, द फंक्शन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ टर्म्स। ये यहाँ पर सिर्फ एक टर्म का फर्क है, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, हियर आई एम जस्ट कन्वेइंग द आइडिया टू यू। यही आगे अगर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है देन इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ओके, सो दैट इज व्हाई it is always preferable to differentiate the function having less number of terms, derivative easy हो जाता है। so we will not go for this। sin 2t को के साथ पहले t मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट वी विल यूज मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी, देन वी विल यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो इसमें से हम लोग एक छोटा सा टिप लेते हैं कि व्हेन इट कम्स टू यूजिंग मोर देन वन प्रॉपर्टी इन द सेम प्रॉब्लम, अगर उनमें से एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है तो वी विल ऑलवेज यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लास्ट में, बाकी जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो पहले यूज करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमेशा आखिर में यूज करेंगे। क्यों, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमें सिर्फ रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है, नो अदर ऑपरेशन, और रिप्लेस करने वाला ऑपरेशन सबसे सिंपल है। ओके, तो ये एक छोटा सा टिप हम याद रखेंगे। इफ वी हैव टू यूज 2 or 3 प्रॉपर्टीज और मोर देन दैट इन द सेम प्रॉब्लम, और उनमें से एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, वी विल यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एट द एंड, लास्ट में यूज करेंगे। ओके,
विथ रिस्पेक्ट टू दैट यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करना है। अभी देखा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लास्ट में यूज करेंगे, मतलब पहले किसको यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। सो लेट्स यूज दैट। सो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टू टी, तो यहाँ टी से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ दिस राइट हैंड साइड 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं। सो दिस बिकम्स -2 इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस अपॉन 1, सॉरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब ये डेरिवेटिव कैसे यूज करेंगे, ये कौन से फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म 1 अपॉन डिनोमिनेटर। So derivative of 1 upon denominator is -1 upon denominator square into derivative of the denominator. Let us use this formula here. So we get -2 into -1 upon s square plus 4 the whole square into derivative of s square plus 4. अब नेक्स्ट स्टेप में ये डेरिवेटिव हमें लिखना है। ये डेरिवेटिव मतलब एस स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है, इट इज 2s प्लस 4 इज अ कांस्टेंट बिकॉज इसमें कोई s का टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। ओके, एंड हियर दिस -2 into -1 will multiply, so we get 2 upon s square plus 4 the whole square into 2s plus 0. अब 2s plus 0 is 2s, we multiply it with this 2, we get 4s upon s square plus 4 the whole square. ओके, तो प्रॉब्लम खत्म हो गया हमारा सॉल्यूशन? नहीं, हमने सिर्फ क्या यूज किया है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। अब क्या बचा है, e रेज टू 2t मल्टीप्लाई करना बचा है, वी हैव टू यूज first shifting property. Okay, so this is what we have got, Laplace transform of t into sin 2t is 4s upon s square plus 4 the whole square. Now we multiply this by e raised to 2t, तो इसको e raised to 2t के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में जहां जहां s दिखता है s के जगह पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा s माइनस 2, तो ये s के जगह पे s माइनस 2, ये s के जगह पे s माइनस 2, we have replaced, so we get 4 into s minus 2 upon s minus 2 the whole square plus 4 the whole square. ओके, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर में स्क्वायर ब्रैकेट है, न्यूमरेटर का you can open or you can leave it as it is, both are correct. Okay, so here we have 4 into s minus 2 upon, when you open this bracket a minus b the whole square का फॉर्मूला आएगा, तो s का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 2 दैट इज -4s एंड प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस दिस 4 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को ओपन किया है, दिस इज जस्ट टू शो, यू कैन लीव इट लाइक दिस या फिर ये लिखेंगे तो भी चलेगा, तो मिलता है 4s माइनस 8 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 8 द होल स्क्वायर। तो ये अपना आंसर है। इज दिस ओके, एनी डाउट हियर? इसमें इस प्रॉब्लम में कुछ डिफिकल्टी है? ओके, या तो भी चलेगा, यस इट विल बी परफेक्टली राइट। फाइनल आंसर इसकी तरह नहीं दिखेगा, फाइनल आंसर का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग लगेगा, ओके, बट योर आंसर विल बी 100% करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, तो अगर एस टू 4 है तो सॉल्व नहीं करना है। हाँ, तो मैं द प्रोसीजर विच आई एम शोइंग इट इज द जनरल, यूजुअली एक हमारा एक क्या बोलते हैं कन्वेंशन होता है ना कि हम फाइनल आंसर को इस तरह लाके छोड़ते हैं, ऐसा इट इज जस्ट अ ट्रेंड, एक हैबिट होता है ना ऐसा कि, तो वो वाला पार्ट ऑफ उस तरीके का सॉल्यूशन में बता रही हूँ। गॉट इट ना, लाइक अगर क्वेश्चन आया शो दैट लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वल टू, ऐसा जहां पे आपको राइट हैंड साइड दिया है, तो वो राइट हैंड साइड आपको इस तरह का रहेगा मोस्टली। Are you getting this? Hello?
हाँ हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बट इसमें अदरवाइज एज आई सेड ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, सी देखो बीच बीच में बहुत सारे स्टेप्स है जहाँ पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा वेरी हो सकता है, अकॉर्डिंगली आपका फाइनल आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, बट ऑल दीज आंसर्स आर सेम, मतलब एक को थोड़ा और सॉल्व करोगे तो दूसरा मिल जाएगा, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. ओके, या एनी अदर क्वेश्चन? ओके, यहाँ पर अगर आपने एक और चीज ऑब्जर्व किया है, एज आई टोल्ड यू, ये वाले प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा अपना इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान देना है डेरिवेटिव. ओके, जो डेरिवेटिव कुछ लोगों को बहुत मजा आता है, कुछ लोगों को बहुत डर लगता है, ठीक है, बट देन ये डेरिवेटिव भी अब हम जब कर रहे, वी हैव जस्ट डेरिवेटिव हमने कल किया, yesterday was the first time we got introduced to this property, right? और आज हमने डेरिवेटिव किया, तो आज हमने जो डेरिवेटिव किया आपको ऑलरेडी थोड़ा वो सिमिलैरिटी फीलिंग आया रहेगा, अरे यही तो किया था कल भी. ओके, सो इट इज लाइक एज वी कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डेरिवेटिव जो है आपने ऑलरेडी एक बार किया है 12th में, अगर उसको ज्यादा ठीक से नहीं किया था, फॉर्मूलाज याद नहीं है तो भी इट्स ओके. एज यू कीप सॉल्विंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें जो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान दे के उसका प्रोसीजर समझना, बिकॉज देर इज अ, ये आप जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे सेम टाइप आएगा फिर से. ओके, तो यू कैन सी दैट रेपिटेशन, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज याद रखना है, बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स याद रखना है. ओके, ये वाले प्रॉब्लम में हमने जो डेरिवेटिव किया है ये आपको सिमिलर सिमिलर तो फील हुआ रहेगा, इजंट इट? Okay, so derivative is not at all difficult. The same thing goes for integration also. Integration also in this syllabus I'm saying is not at all difficult. Okay, it is just a matter of getting used to. एक बार आदत पड़ जाएगी इनकी तो हमको difficult लगेगा नहीं. Okay, all right. Now let's go to the next problem. अभी देखो next problem है, we have to find Laplace transform of e raised to minus t t square cos 3t. कल हमने एक प्रॉब्लम देखा था जहां पे टी स्क्वेयर इंटू साइन फंक्शन था, तो यहाँ पर टी स्क्वेयर इंटू कॉस फंक्शन है और उसके साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे आता है, लेट अस सी. तो वी हैव टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू माइनस टी टी स्क्वेयर, सॉरी ई रेज टू माइनस टी इंटू टी स्क्वेयर इंटू कॉस 3t. तो ये ई रेज टू माइनस टी को मल्टीप्लाइड देखकर कौन याद आता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ये टी स्क्वेयर इज मल्टीप्लाइड, इसको देख के कौन याद आता है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी दो बार, टी स्क्वेयर है यानी दो बार मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करना है. cos 3t, cos 3t के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब दिस बिकम्स द बेसिक फंक्शन. ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो चॉइस है, एक है मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी दो बार यूज करना है, एक है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो हमने जैसे डिसाइड किया है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम हमेशा आखिर में यूज करेंगे, मतलब पहले हम मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ओके, बट शुरू कहाँ से करें, तो जो जो प्रॉपर्टी वाले टर्म्स है पहले उनको गायब कर देते. ई रेज टू माइनस टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड है, इसको गायब कर दो. टी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी के साथ है, गायब कर दो. बचा कौन, Laplace transform of cos 3t. तो we begin with that. तो Laplace transform of cos 3t by formula is s upon s square plus 3 square, that is s upon s square plus 9. ओके, तो ये हमारा Laplace transform of cos 3t मिल गया. इसमें हम अब सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दो बार यूज करना है, तो वी विल यूज इट वन बाय वन. तो सबसे पहले एक t के साथ मल्टीप्लाई करते, सो वी गेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इनटू cos 3t will be equal to minus derivative with respect to s of s upon s square plus 9. ओके, तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पर न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट नहीं है, s फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए वी हैव टू यूज आर u अपॉन v रूल, जिसको कोशेंट रूल भी बोलते हैं. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, इसको हमने कल रेफर किया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में, today also I'll take it in the same way. So derivative of numerator upon denominator equal to denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. Okay,
तो ये यहाँ पर यूज करेंगे. न्यूमरेटर इज दिस एंड डिनोमिनेटर इज दिस. सो वी गेट दिस माइनस विल रिमेन एज इट इज. तो पहले हमने लिखा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो हमने सिर्फ ये फॉर्मूला वैसा का वैसा सब्स्टिट्यूट किया है. अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं. क्या सिंप्लीफाई करेंगे? ये डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू s ये हमें पता है, इसका आंसर है 1. ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ s स्क्वायर प्लस 9 का भी आंसर पता है, इसका डेरिवेटिव है 2s प्लस 0. तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस माइनस रिमेन्स एज इट इज हियर. ये s स्क्वायर प्लस 9 वैसे के वैसे लिखा. डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ s इज 1. तो ये सब्स्टिट्यूट किया. Then this minus here will remain as it is. This s will remain as it is. Derivative with respect to s of s square plus 9. तो s square का डेरिवेटिव है 2s plus 9 का डेरिवेटिव है 0. Okay. And the denominator remains as it is, s square plus 9 the whole square. अब इस न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो दिस विल बी माइनस s square plus 9 into 1 is s square plus 9 minus s into 2s plus 0 is 2s. So s into 2s is 2s square. So we get minus 2s square upon s square plus 9 the whole square. अब यहाँ पर s square minus 2s square will be minus s square. तो ये सब्स्टिट्यूट करते, we get this minus remain as it is. S square minus 2s square is minus s square plus 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर. ओके, तो अब ये माइनस को हम अंदर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट्स कम हो जाएंगे अपने. सो दिस विल गो इनसाइड एज माइनस इंटू माइनस ऑफ s स्क्वायर इज s स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस 9 इज माइनस 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू cos 3t. ओके, तो अब तक हमने क्या किया है? बेसिक फंक्शन cos 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, उसके साथ एक t मल्टीप्लाई किया है. ओके, बट यहां पर कितने t मल्टीप्लाई करना है? 2. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय t once more. तो लेट अस डू दैट. सो हियर व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय t once more we get Laplace transform of t square into cos 3t. यहां पर एक और t के साथ मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ दिस फंक्शन. ओके, तो ये डेरिवेटिव अब कैसे लेना है, लेट अस सी. तो यहाँ पर यू कैन सी न्यूमरेटर में भी फंक्शन ऑफ s है, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ s है. तो हम यहाँ पर फिर से u अपॉन v रूल, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव रूल यूज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट द रूल एज इट इज. सो दिस विल गिव अस माइनस एज इट इज, ये डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस numerator into derivative of the denominator upon denominator का square. denominator is s square plus 9 the whole square. इसको square किया तो we get s square plus 9 the whole raised to 4. okay, तो पहला स्टेप हमने सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है. सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट में करते हैं, वन बाय वन करेंगे तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन एंड नो मिस्टेक. ओके, अब यहाँ पर हम क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? तो डेरिवेटिव वाला पार्ट देखते हैं. ये डेरिवेटिव, दिस डेरिवेटिव वी नो, s स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2s माइनस 9 इज अ कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव 0. ये वाला डेरिवेटिव s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर, ये भी हमने कल देखा था कैसे करना है. इसका प्रोसीजर को बोलते हैं चेन रूल. कैसे करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ, इसको हमने ब्रैकेट, यू के जगह पे ब्रैकेट बोला था. सो डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर is 2 times the bracket into derivative of the bracket. Okay, so we have to write down the derivative of this bracket square. तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, सो लेट अस यूज दैट फॉर्मूला. ये माइनस यहाँ पर आ गया, s स्क्वायर प्लस 9 द होल, सॉरी s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर वैसा का वैसा. ये डेरिवेटिव s स्क्वायर इज 2s माइनस 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस s स्क्वायर माइनस 9 वैसा का वैसा
अब इसका डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इंटू द ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। ओके, तो ये सिर्फ फॉर्मूला हमने सब्सटीट्यूट किया, अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल रेज टू 4। अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये वाला डेरिवेटिव को लिख के। अब ये डेरिवेटिव डायरेक्ट हमें पता है, s स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2s प्लस 9 का डेरिवेटिव है 0। सो लेट्स डू दैट इन द नेक्स्ट स्टेप। ये माइनस वैसा का वैसा, s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर इंटू 2s माइनस 0 इज 2s माइनस s स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज, 2 as it is, s square plus 9 as it is, this will, इसका डेरिवेटिव होगा 2s plus 0 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल रेज टू 4। ओके, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, तो ब्रैकेट ओपन करने से पहले एक बार देख लेते हैं इफ वी कैन टेक कॉमन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि s स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट अस टेक दिस ब्रैकेट s स्क्वायर प्लस 9 कॉमन, तो मिलेगा ये माइनस, एक s स्क्वायर प्लस 9 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, इसमें से एक s स्क्वायर प्लस 9 चला गया, तो एक s स्क्वायर प्लस 9 है इंटू 2s माइनस s स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2, ये तो बाहर कॉमन चला गया, एंड 2s प्लस 0 इज 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल रेज टू 4। ओके, तो ये कॉमन क्यों निकाला, ताकि ये इसके साथ कैंसिल हो सके। तो अगर ये कैंसिल हुआ तो वी गेट माइनस, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो ये डिनोमिनेटर का पावर देखो 3 बन गया। ओके, और ये ब्रैकेट के अंदर जो बचा है, आई हैव जस्ट रिटन इट एज इट इज, s स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2s माइनस s स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 इंटू 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल क्यूब। ओके, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, so this minus would remain as it is, s square into 2s will give us 2s cube plus 9 into 2s, that will give us 18s minus s square into 2 into 2s, that would give us minus 4s cube. Okay, minus of minus 9 into 2 into 2s, that would give us plus 9 fours are 36s upon s square plus 9 the whole cube. Okay, so now we will combine the similar terms. 2s cube minus 4s cube will give us minus 2s cube, 18 plus 18s plus 36s will give us plus 54s. Okay, तो ये simplification करते हैं, we get minus 2s cube minus 4s cube is minus 2s cube plus 18s plus 36s gives us plus 54s upon s square plus 9 the whole cube. अब ये माइनस को अंदर ले लेते हैं, 1 minute, I think there is a mistake here, this should be 2s cube, ये माइनस को अंदर ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस 54s। जस्ट गिव मी 1 minute। Where is it? Yeah, this is 2s cube minus 54s.
That same sign was carried forward in the next step. I'll just rectify that. Yes. Now we are good to go. Okay, so this we have seen. Yeah, we had opened the bracket, तो ये बन गया था 2s क्यूब माइनस 54s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल क्यूब. तो ये हमें मिला लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस 3t. अब इसमें हम e रेस टू माइनस टी मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर e रेस टू माइनस टी मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब राइट हैंड साइड में क्या करना है, s के जगह पे s प्लस 1 रिप्लेस करना है, बिकॉज दिस इज e रेस टू माइनस टी. सो विल गेट 2, जहां जहां s दिखता है रिप्लेस इट बाय s प्लस 1. तो वी गेट 2 इंटू s प्लस 1 द होल क्यूब माइनस 54 s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 9 द होल क्यूब. ओके, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन मतलब ये सी दिस ब्रैकेट वी कैन ओपन, ये स्क्वायर ब्रैकेट तक ओपन रखते हैं, क्यूब ब्रैकेट वी विल लीव इट एज इट इज. सो 2 into s plus 1 the whole cube, this will give us minus 54s minus 54 upon, ये ब्रैकेट ओपन किया तो वी गेट s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 9 द होल क्यूब. अब यहाँ पर ये 1 प्लस 9 को ऐड कर सकते हैं, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन वी कैन डू. सो वी गेट 2 इंटू एस प्लस 1 द होल क्यूब माइनस 54s माइनस 54 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s plus 10 the whole cube, and that becomes the final answer. Did we understand this? इस प्रॉब्लम में कैसे था, टी स्क्वायर इंटू कॉस 3t था, तो u अपॉन v रूल हमें 2 बार यूज करना पड़ा. ओके ओके, थैंक यू. नाउ जब टी स्क्वायर इंटू साइन फंक्शन रहता है, तो साइन का लप्लास ट्रांसफॉर्म में न्यूमरेटर में कांस्टेंट रहता है, तो एक बार एक डेरिवेटिव में हम 1 अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और u अपॉन v एक ही बार यूज करते हैं. लेकिन अगर cos रहता है तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हैज s इन द न्यूमरेटर, तो u अपॉन v यूज होता है पहले डेरिवेटिव में, u अपॉन v यूज होता है दूसरे डेरिवेटिव में. तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट नॉट एन इशू, वी हैव सीन हाउ वी कैन सॉल्व इट. ओके, all right, now that we have understood this, let us go to the next problem. Here we are seeing all the different varieties in which the question can be asked. तो ये एक और टाइप है जिस तरह से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दैट इज फाइंड लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into sin 2t into cos hyperbolic t. Hyperbolic function है. Okay, so we have to find Laplace transform of t into sin 2t into cos hyperbolic t. सबसे पहले हम ऑपरेशंस देखते हैं, लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, ऑपरेशंस देखते हैं. करेक्ट, तो ये ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर t है, लेकिन t को देखने से पहले हमें कौन दिखता है, हाइपरबोलिक फंक्शन. दिस कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इज मल्टीप्लाइड, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का डेफिनेशन, राइट. सो दिस वुड बी t इंटू साइन 2t. कॉस हाइपरबोलिक t का डेफिनेशन या फॉर्मूला बोल सकते हैं, e रेस टू t प्लस e रेस टू माइनस t अपॉन 2. ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो 2 इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, इसको बाहर निकालेंगे and we'll open this bracket. So this will come out and we get the constant half here into Laplace transform of t into sin 2t into e raised to t. So that is what we get, t into sin 2t into e raised to t plus t into sin 2t into e raised to minus t. So t into sin 2t into e raised to minus t. Okay, अब यहाँ पर हमने देखा प्लस है, लप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर एडिशन है तो linearity property. So let's separate this using linearity property. So this would be half as it is Laplace transform of t into sin 2t into e raised to t plus Laplace transform of t into sin 2t into e raised to minus t. अब इसको हम बुलाएंगे स्टेटमेंट नंबर 1.
इस स्टेटमेंट नंबर 1 में देयर आर 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। इसको हम डायरेक्टली यहीं पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, वी हैव टू फाइंड दिस आउट सेपरेटली, we have to find this out separately and then we'll have to substitute this। तो पहला वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं, इसमें अभी हमें कौन कौन दिखता है। ऑपरेशन इज ओनली मल्टीप्लीकेशन, तो t दिखा मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी, e रेस टू t दिखा तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी t दिखा तो मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी, e रेस टू माइनस t दिखा मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, और हमने डिसाइड किया है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम आखिर में यूज करेंगे। तो ये पहला वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट करना है, हाउ विल वी प्रोसीड। टी प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड है, इसको गायब करो। ई रेस टू टी प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड है तो इसको गायब करो। कौन रह गया, साइन टू टी। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे t से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे e रेस टू t से। ओके, दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हियर आल्सो t प्रॉपर्टी के साथ है तो इसको गायब करो। e रेस टू माइनस टी मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको गायब करो, बचा साइन टू टी। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी कैसे प्रोसीड करेंगे, फर्स्ट विल फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी, then multiply it with t, then multiply it with e raised to minus t। ये अपना प्रोसीजर होगा। अब इन दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है। द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी, दोनों के लिए कॉमन है। सेकेंड स्टेप मल्टीप्लीकेशन बाय टी भी कॉमन है। थर्ड स्टेप डिफरेंट है, क्यों, थर्ड स्टेप के लिए यहाँ ई रेस टू टी के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ ई रेस टू माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो फर्स्ट टू स्टेप है ये दोनों के लिए हम कॉमन लेंगे। ओके, सो टू बिगिन विथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी लिखना है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब नेक्स्ट इसके साथ t मल्टीप्लाई करना है, तो लेट अस मल्टीप्लाई इट विथ t। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into sin 2t is minus derivative with respect to s of 2 upon s square plus 4। Again the same similar formula has come, see। So इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले ये कांस्टेंट 2 को बाहर निकालते हैं, तो माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज करके, सो दिस वुड बी माइनस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। अब ये जो डेरिवेटिव है इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमें आता है एस स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2s प्लस 4 का डेरिवेटिव है 0। सो ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे और माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज 2, वो भी हम लिख सकते हैं। तो वी गेट 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2s प्लस 0। 2s प्लस 0 इज 2s, इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। ओके, तो ये मिल गया हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t विच इज 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। तो यहाँ तक का पार्ट वो दोनों लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कॉमन पार्ट है। ओके, सो अब the third part where we have to multiply by the exponential function, that we'll have to do separately for each term। तो first इसके लिए हमें t into sin 2t के साथ मल्टीप्लाई करना है e raised to t। So here when we multiply by e raised to t, Laplace transform of e raised to t into sin 2t, तो राइट हैंड साइड में s के जगह पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा s minus 1। So this would be 4 into s minus 1 upon s minus 1 the whole square plus 4 the whole square। इसमें जहां तक स्क्वायर का ब्रैकेट है वहां तक हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने ओपन किया है 4s minus 4 अपॉन s square minus 2s plus 1 plus 4 the whole square। So this would be equal to 4s minus 4 upon s square minus 2s plus 5 the whole square। Okay, यहाँ पर now as somebody was asking another alternate way क्या हो सकता है, ये s square plus 4 the whole square का ब्रैकेट आप पहले ओपन कर दो तो यहाँ पे s raised to 4 आएगा और फिर आप s minus 1 सब्सटीट्यूट करो,
इन दैट केस जो डिनोमिनेटर में s माइनस वन द होल रेज टू 4 आएगा उसको आपको ओपन नहीं करना है. ओके, दैट इज अनदर वे ऑफ प्रोसीडिंग. ये जो है इसमें ब्रैकेट्स लास्ट में ओपन करने का टेक्निक हम यूज कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रेटेजी वेयर वी ओपन द ब्रैकेट, डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट एट द एंड. बोथ आर 100% करेक्ट. ओके, चलो ये फर्स्ट वाला मिल गया. सेकेंड वाला कैसे मिलेगा? ये t इंटू साइन 2t के साथ हमें e रेस टू माइनस टी मल्टीप्लाई करना है. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई हियर बाय e रेस टू, इसको 2 बुला दिया, माइनस टी, वी गेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस टी इंटू टी इंटू साइन 2t. मतलब यहाँ पर s के जगह पे s प्लस वन सब्सटीट्यूट करना है हमें. तो we get 4 into s plus 1 upon s plus 1 the whole square plus 4 the whole square. इसको again brackets open करते. तो this will give us 4s plus 4 upon s square plus 2s plus 1 plus 4 the whole square. Again you may ask, is it necessary to open this bracket? No, you can leave it as it is. ये दोनों correct है. Okay, यहाँ पर 1 plus 4 can be simplified, so we get 4s plus 4 upon s square plus 2s plus 5 the whole square. We call this as 3. अब ये 2 और 3 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे अपने स्टेटमेंट नंबर 1 में. तो ये था अपना स्टेटमेंट नंबर 1. वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट इट. सो दिस इज हाफ इंटू 4s माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 द होल स्क्वायर, जो इसका आंसर था, प्लस इसका आंसर था 4s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 द होल स्क्वायर. ओके, अब इसमें एक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है. न्यूमरेटर में वी कैन टेक अ 2 कॉमन एंड इट विल कैंसिल विद दिस. आप चाहे तो पूरा 4 भी कॉमन निकाल के 2 बाहर रख सकते हैं. ऑप्शंस आर देयर. I have just removed 2 common and cancelled with this. So we get 2s minus 2 here upon s square minus 2s plus 5 the whole square plus यहाँ पर 2s plus 2 upon s square plus 2s plus 5 the whole square. Okay, and this is the final answer. Any confusion here? सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन आता है तो थोड़ा सॉल्यूशन लेंदी हो जाता है, बिकॉज उसका डेफिनेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो दैट इटसेल्फ गिव्स अस 2 टर्म्स ना, तो 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाता है उसमें. वी हैव टू फाइंड ईच वन एंड सब्सटीट्यूट. तो लेंदी हो जाता है, बट इट इज डेफिनेटली नॉट डिफिकल्ट, इजंट इट? तो यहाँ तक हमने किया है, उसमें आपको कोई भी डाउट है? Okay, all fine. Okay, great. Now these are all the types of problems जहाँ पे multiplication by t property, मैंने सारे varieties involve किए हैं, तो आपको बहुत सारी जगह पे repetition भी लगा होगा. But then I just wanted to cover all the different ways, multiplication by t property का combination आ सकता है. Okay, all right. Now the next property we have to see is division by t property. Okay, so that we will not be able to see today, so that we will take it up tomorrow. Sorry, not tomorrow, I mean in the next lecture, that is Monday's lecture. हाँ, yes dear, कुछ डाउट है? ओके, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करना. कुछ भी डाउट है तो पूछना. ओके, नाउ कल के लेक्चर में एज फार एज द टॉपिक कंटेंट इज देयर, आज इतना ही डिस्कस करना था. ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल. नेक्स्ट लेक्चर में एज आई टोल्ड यू हम लोग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे. 1 मिनट, कैन यू शो मल्टीप्लीकेशन बाय टी स्लाइड फॉर लास्ट सम? मतलब दिस वन, प्रणय, इज दिस वन, इसका एक मिनट. हाँ, ये वाला प्रणय, ये वाला या इसके पीछे वाला? ओके, कोई डाउट है?
डाउट। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसका पीडीएफ फॉर्म मैं अभी अपलोड करती हूँ। ओके, या इफ एनीवन एल्स हैज एनी डाउट प्लीज डू आस्क। आप फॉर्म में फिल कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, so today I will be answering your queries in the evening only. Till evening I'm little busy. अच्छा, तो अभी अनदर थिंग इज, ये आपका जो आज का क्विज है, ये अभी तक आज मैं आई विल बी पोस्टिंग इट अ लिटिल लेट, मैं आपको इवनिंग तक क्विज पोस्ट करूंगी। सो राइट नाउ द क्विज इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो इवनिंग तक आई विल पोस्ट द क्विज, सो प्लीज अटेम्प्ट इट। एंड डाउट्स एंड क्वेरीज वाला फॉर्म भी मैं इवनिंग तक पोस्ट करती हूँ, उसके बाद आप उसको फिल करना। राइट नाउ आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस मटेरियल, आप उसको रेफर करना। ओके, सेकेंड थिंग, आज आज शाम को आपको एक और चीज मिलेगा। आपको क्विज 8 मिलेगा, डाउट और क्वेरीज का फॉर्म मिलेगा। एक और चीज है, वो है आपका मिनी प्रोजेक्ट का ग्रुप जो है, उसमें आपको अभी प्रॉब्लम्स असाइन होंगे। आज आपको प्रॉब्लम्स असाइन होंगे। नेक्स्ट सैटरडे आपको उसका सबमिशन फॉर्म मिलेगा, जो आपको वीडियोस बना के सबमिट करने हैं। ओके, वो नेक्स्ट सैटरडे, तो आपको एग्जैक्टली 1 वीक का टाइम मिलता है। अब कल के लेक्चर में आप लोगों ने बताया था कि आपको